ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان گلتاسب اور آپ دیکھ رہے ہیں NC نیوز۔ آج ہم موجود ہیں صبا گل کے گھر اور ان سے ہم بات کریں گے کہ خصوصی یہ کچھ باتیں ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور ناظرین سے کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی ہمیں کال کر کے کہا ہے کہ آپ نے آج آنا ہے اور اپنے چینل کی ملاسفت سے میں نے پورے پاکستان میں یہ بات آج ورلے کرنی ہے کہ جو انہوں نے سوچ رکھی ہے۔ یہ کیا بات ہے یہ صبا گل ہی بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج کا میرا میسج خاص الخاص صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے لیے یہ میرا میسج ہے۔ میں ہوں گناہ تو میرا گناہ گار کون ہے؟ وہ مجھے آج میری بہنوں سے، میرے بھائیوں سے، سب لوگوں سے مجھے جواب چاہیے۔ میں ہوں گناہ، میرا گناہ گار کون ہے؟ اور مجھے اس عوام سے، علماء کرام سے، عہدیدارانوں سے، پرائم منسٹر سے، پولیس سے، فوج سے، رینجر سے، ہر وہ جتنے بھی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ادارے، ان سے میرا سوال ہے، عوام سے بھی ہے، ماں بہنوں بچوں سے ہے، بھائیوں سے ہے، سب سے۔ میں گناہ ہوں، میرا گناہ گار کون ہے؟ مجھے یہ لوگ جواب دیں۔ جن سے میری پیدا ہوئی انہی لوگوں سے توسل۔ ایک عورت میری ماں تھی، ایک مرد میرا باپ تھا، ایک عورت میری بہن تھی، ایک مرد میرا بھائی تھا۔ میں بیوی تو کسی کو نہیں کہہ سکتی کیونکہ میری وہ ہے ہی نہیں۔ بیٹے میں اس بنسبت کہہ سکتی ہوں جو میری ایج سے چھوٹے ہیں، بھائی میں ان سے کہہ سکتی ہوں جو میری ایج کے برابر ہیں، تائے چاچے بابے میرے وہ ہو سکتے ہیں جو میرے باپ کا رتبہ اور مقام رکھ سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا، کیا ہم کسی کو ٹیلی فون کر کے گھر سے بلاتے ہیں؟ اور یہ الزام میں اپنے سر پہ لے رہی ہوں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ عوام، میری ماں بہنیں بھائی بچے سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کیا ایک عورت کے، مرد کے لیے ایک عورت کو، وہ اپنی عورت کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتا؟ یہ میں میسج دینا چاہتی ہوں ان لوگوں کو، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ میں گناہ ہوں، میرا گناہ گار کون ہے؟ مجھے جواب دو۔ میں وہ گناہ گار ہوں، بغیر گناہ سے بھی گناہ گار آپ لوگ مجھے ٹھہرا دیتے ہیں۔ میں وہ انسان ہوں، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے مجھے اس حرکت میں مسلط کیا جاتا ہے۔ میں وہ انسان ہوں، میں ٹرانسجنڈر سب کو لیٹ کر رہی ہوں۔ میں وہ گناہ گار انسان ہوں، میں آپ لوگوں کی بچیوں کی شادی کرواتا ہوں۔ میں وہ گناہ گار ہوں، آپ کی صحت کا خیال رکھ کے ڈسپینسریاں کھول کر آپ لوگوں کو فری علاج دے دوں۔ میں وہ گناہ گار ہوں، ہیپیٹائٹس سی، بی، اے، جس کا بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، میں 2 مہینے 3 مہینے کا علاج کرنے کے لیے ان کو گھروں تک جا کر میں پیمنٹ ادا کر کے آتا ہوں۔ میں وہ گناہ گار ہوں، ایک تالاب میں مچھلی غلط ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، پورے تالاب کو آپ لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ میں سوال کرتی ہوں، اس معاشرے کے اندر عورت بھی ایسی ہے، اس معاشرے کے اندر مرد بھی ایسا ہے، اس معاشرے کے اندر ٹرانسجنڈر تیسری جن بھی مخصوص کی گئی ہے، اور 3 جنس کو دیکھا جاتا ہے، مرد، عورت اور ٹرانسجنڈر۔ میں آپ کو یہ اعلانیہ کہنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں 18,000 مخلوقات ہے، جس میں کیڑی بھی ہے، مچھر بھی ہے، مکھی بھی ہے، حیوان بھی ہے، جانور بھی ہے، جنات بھی ہے، انسان بھی ہے۔ ان سے کوئی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں؟ میں وہ انسان ہوں، تیسری جن جس کو کہا جاتا ہے خواجہ سراں۔ اگر اسے پاکیزی مینے کی طرف دیکھا جائے، اگر وہ اپنے ناڑے کا پکا ہے، اگر وہ اپنی جسم کی پاکیزگی کو پاکیزہ سمجھتا ہے، تو وہ ایک فرشتہ بھی آپ لوگ کہلاتے ہیں۔ میں یہ نہیں جان سکتی جو ہمارے جیسا لباس پہن کر سڑکوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، ہر جگہ میں گھومتے ہیں، اس میں کوئی ایسے فرشتے بھی ہیں، مجبوری کی طے میں وہ باہر نکلتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، آٹا خریدنے کے لیے، سبزی خریدنے کے لیے، گوشت خریدنے کے لیے، مہمان اپنے عزیز کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کے اوپر بھی ایسا ہی شدت ہوگا، ان کے اوپر بھی ایسا ہی ظلم ہوگا۔ یہ ذمہ دار کون ہوگا؟ گورنمنٹ ہوگی، عوام ہوگی۔ عوام کو چاہیے گورنمنٹ کو نہ برگلائیں۔ اگر یہ آپ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ آپریشن کر رہے ہیں، آپ ڈیروں سے اٹھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر آپ کے پاس ان کے گناہ کا ثبوت کیا ہوگا؟ میں بائی دا وے ان ٹرانسجنڈروں کو یہ بھی میسج دینا چاہتی ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی بھی مرد آئے
गंदी वलालत को मिक्स करने के लिए, गंदा तलक रखने के लिए आप उसकी वीडियो बनाएं और उस बंदे का नाम लें और उसका चेहरा सामने करें, तो मैं मानूंगी मेरा ट्रांसजेंडर गलत है। अगर वो मर्द के घर ये ट्रांसजेंडर खुद चल कर जाता है तो उस मर्द के लिए भी पैगाम है, वो वीडियो मैसेज मुझे दे, मेरे साथ रब्ता करें, क्योंकि मैं पूरा साथ आपका दूंगा। अगर हमारे ट्रांसजेंडर जो अच्छे हैं, जो ख्वाजा सराह हैं, उनको भी बदनाम करने की कोशिश है कि मैं हरगिज़ उन बंदों का साथ नहीं दूँ। बीच बाजार में, चौकों में, हर जगह में शिद्दत हो रहा है, हर जगह पे जुल्म हो रहा है, हर जगह पे ज्यादती हो रही है, इंसाफ कौन देगा? मेरा सिर्फ ईमान अल्लाह की ज़ात पे है, मेरा अल्लाह मेरा इंसाफ मुझे ज़रूर देगा। उसकी वजह ना ही तो मैं किसी मर्द पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, ना ही मैं किसी औरत पे कर सकती हूँ। अगर औरत जगह जगह में बैठकर ऐसे काम कर रही है, आज दिन तक किसका नाम लिया? कभी किसी गुनहगार को आपने पकड़ा है? क्योंकि मैं और ये मेरे साथ ये भी ख्वाजा सराह ट्रांसजेंडर बैठा हुआ है, हम आपस में तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए अगर हमारे साथ कोई तलकात जोड़ेगा, वो कौन है? एक मर्द, मुकम्मल मर्द। उस मर्द का कभी किसी ने नाम लिया है? आप मुझे ये जवाब दें, वो ख्वाजा सराह है क्या चीज़? वो तो एक मजलूम तबका। किसने नाम रखा? आप लोगों ने। ट्रांसजेंडर मजलूम थर्ड जिसको कहा गया है, तो वो आपको ब्लैकमेल कैसे कर सकता है? अगर आप मर्द हैं, आपके अंदर एक पावर है, तो आप उसकी ब्लैकमेल क्यों नहीं तोड़ते? आप सीधा उसे बाजू से पकड़ें, कानून का सहारा ले, पुलिस के पास जाएं, दरखास्त दें और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाएं। आपके पास अगर सबूत प्रूफ है, अगर सबूत प्रूफ नहीं है तो इसी तरह यानी कि हमें बदनाम करी जा रहे हो। खुदा का खौफ करो। मैं कहती हूँ अल्लाह की लानत उस इंसान पे पड़े, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, जो सबूत के बगैर यानी कि उंगली उठाता है किसी के ऊपर। याद रखो, अगर आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, और आप कौन है, जन्नत के हकदार कभी भी नहीं हो सकते। ये मेरे अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह के कुरान का फैसला है, अल्लाह ताला की हदीसों का फैसला है। वो कभी इंसान जन्नत का हकदार नहीं बन सकता। मैं साथ ही एक और लफ्ज़ कहना चाहती हूँ, गुनाह क्या है? जना का गुनाह वो है, वो नशा सिर्फ 5 और 10 मिनट का है, वो भूत तो आपका उतर जाएगा, मगर वो गुनाह से कभी आप जान नहीं छुड़ा पाएंगे। वो जहन्नम तक आपको लेकर जाएगा, जहन्नम तक। वो गुनाह होता है जिस गुनाह को पर्दे के अंदर किया जाता है, अल्लाह ताला उसकी माफ़ी देता है। जिस गुनाह को आप पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को बरगला रहे हैं, तो वो गुनाह के जिम्मेदार आप खुद हैं। चाहे उसमें मीडिया है, चाहे उसमें एजेंसियां हैं, चाहे उसमें गवर्नमेंट है, चाहे उसमें पुलिस है, जितने भी इदारे, ये गुनाह अपने जिम्मे ले रहे हैं आप। इतना मेरा पैगाम। मैं गुनाह हूँ, मेरा गुनहगार कौन है? मुझे जवाब दो। जी नाजरीन, सबा गुल की आपने बातें सुनी और उन्होंने एक आपके लिए सवालिया निशान छोड़ा है कि मैं क्या गुनाह हूँ, मेरा गुनाहगार कौन है। हमारे साथ हिना गुल भी बैठी हैं, इनकी राय भी हम लेते हैं कि आया ये इस मौजू पे, इस सवालिया निशान पे इनकी क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। देखिए, हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं पैदा हुए, हम अल्लाह पाक की तकदीर के, ठीक है, अल्लाह पाक की मर्ज़ी से पैदा हुए। जिन माँ बाप के कोख से आप लोग पैदा हुए, जन्म लिए, इसी तरह हम भी पैदा हुए, हम भी इंसान हैं, ठीक है ना। हम इस दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी से आए। हदीस में बार बार जिक्र आता है, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने आपको औलाद से नवाजा, एक मर्द से नवाजा, एक औरत से नवाजा, ठीक है। उससे हट के भी एक चीज़ दी है, वो चीज़ हमें। प्लीज़ अल्लाह की दखल अंदाज़ी में आप लोग दखल अंदाज़ी ना करें। हम भी इंसान हैं, हमें कबूल करें, हम भी उस माशरे का हिस्सा हैं और हमें भी हक़ है जीने का, जैसे दूसरे इंसानों का जीने का हक़ है, मर्द औरत का। तो आप हदीस को नहीं जुटला सकते। तो बस ये बात का ख्याल रखें कि अल्लाह पाक ने जो हदीस में लिखा उस पर आप लोग अमल करें और खुदारा हमें अपनाएं। ऐसा नहीं हो कल के आपके घर में भी हमारे जैसा कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो तो फिर सोचे आप लोग उसका क्या करेंगे, आप लोग उसको नहीं अपनाएंगे। माँ बाप के लिए तो सब बच्चे एक बराबर होते हैं। अगर उनके घर में कोई चरसी मवाली पैदा हो जाए, या कोई माजूर पैदा हो जाए, या कोई डकैत चोर पैदा हो जाए, या कोई ख्वाजा सराब पैदा हो जाए, माँ बाप के लिए तो वो औलाद ही होते हैं ना।
बस ये बात को जहन में रखें। खुदारा खौफ करें उस अल्लाह से जिसने हम सबको पैदा किया, जो कुल कायनात का मालिक है। वो आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है। छोटी सी ब्रेक के बाद फिर सबा गुल से 2-4 बातें और पूछेंगे और इस प्रोग्राम का एंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। एक मरतबा फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और सबा गुल से इस सवाल के बारे में थोड़ी सी और बातें पूछेंगे। जी बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूँगी उस माँ बाप से। देखिए, हम बहुत दुखी हैं, हमारे ऊपर तरस करें वो माँ बाप जो माँ बाप अपनी औलाद का ख्याल नहीं रख सकते। ये माशरे में, गवर्नमेंट में, हर जगह में हमें जलील किया जा रहा है। हम बहुत तकलीफ़ में हैं। ये ज़रूरी नहीं है मैं ऐसा काम नहीं करती, मैं तकलीफ़ में नहीं, मैं कमेटी की वजह से बहुत तकलीफ़ में। मैं उस माँ बाप के आगे हाथ जोड़ना चाहती हूँ। आपने हमें पैदा किया, आप हमें ताफ़स दे सकते हैं, आप हमें अपने गले लगा सकते हैं, आप में हमारी ज़िंदगी और मौत का अख्तियारात आप ले सकते हैं। मारना और इज्जत ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में, किसी बंदे के हाथ में नहीं। प्लीज़ मैं उन माँ बाप के आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने ऐसे बच्चों को गले लगा लो, घर वापस बुला लो। इस जलालत से, इस अज़ियत से, इस गुट के मरने से आप अपने हाथों अपने बच्चों को मार दो और इन दरिंदों के हाथों में हमें मजबूर ना करो। मैं प्लीज़ आप लोगों से जो मैंने सवाल किया, मैं अपनी स्क्रीन पे मैं नंबर दे रही हूँ, प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना। मैं बहुत दुखी हूँ इस वक्त। अगर मैं नहीं भी गुनहगार, मुझे गुनहगार ठहराया जा रहा है। प्लीज़ मेरी मिन्नत है आप लोगों से। जी नाज़रीन, सबा गुल की आपने बातें सुनी और उन्होंने आज माँ बाप पे, आवाम पे, इदारों पे, हर बंदे पे एक सवालिया निशान छोड़ा है कि मैं गुनाह हूँ, मेरा गुनाहगार कौन है। इसका जवाब आप नाज़रीन इनको देंगे तो फिर हम आपको कहेंगे कि वाकई इनके हक़ में आप बोल रहे हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन पे हम नंबर इनका छोड़ देते हैं, आप उन पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अपने मेज़बान गुलतासिब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं तारफ़ कराती जाऊँ अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ। ये मेरे वालिद मोहतरमा हैं, मेरा आज का वालिद और आपका, ठीक है। और कुछ लोग इन चीज़ों में सवाल उठाते हैं। मेरा सवाल उठाने का यही मकसद था, अपनी औलाद को अपने गले लगाओ और उन्हें प्यार से समझाओ। ये लोग प्यार की बात ज़्यादा समझते हैं। आज दिन तक ना ही तो मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला और मेरे बगैर ही 1 मिनट नहीं रह सकते, क्योंकि मैं इनकी औलाद हूँ। ये मेरे बाप की ज़बानी खुद समझे। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ और मेरे बाप के हाथ ऐसे ही होते हैं, मेरे बच्चे को अल्लाह करियर से वापस देकर। ऐसे माँ बाप भी होते हैं, कोई माँ बाप को बदनाम नहीं करना चाहता। मैं उस माँ बाप के लिए मैसेज छोड़ रही हूँ, अपने बच्चों को गले लगाओ। ये वक्त है गले लगाने का। अपनी गलतियाँ सुधार लो और अपने माँ बाप की रज रज के खिदमत करो। दुनिया और आखिरत समझ जाओ। अल्लाह।